Today we are going to discuss about the spinal cord. Spinal cord. Spinal cord as nomenclature you have read in lower classes. Cord-like structure situated in spinal. It means vertebral canal having a cord-like structure in a spine, having the vertebrae are there, 33 vertebrae are there, and these 33 vertebrae is having the vertebral foramen is there, and vertebral foramen are going to be joined, and its form vertebral canal is there, and vertebral canal also called spinal canal is there, and spinal canal is having a cord-like structure within the vertebral canal. Within the spinal canal, we have given the name that is called spinal cord, cord-like structure. In last lecture, when we are going to discuss about the development of the nervous system, in embryological aspect, the nervous system is going to be developed by the ectoderm. Three germinal layer in which the ectoderm is responsible for the formation of the nervous system. But neural tube and neural crest, two structures in the embryological aspect. Neural tube is responsible for the formation of the central nervous system, while you will see neural crest is responsible for the peripheral nervous system. Now you will see the neural tube is 3 millimeter, length is of the neural tube is there. In the 12th week of the embryo is having this is the neural tube. In the cephalic part of the neural tube is going to be formed, the vesicles are there, and this one is the remaining part, like that. You will see this is going to be formed the brain, and caudal part is going to be formed spinal cord. In the process of the embryogenesis, the spinal cord is situated within the spinal canal, within the vertebral canal. But as I think regarding the brain, we have discussed brain is situated in brain box or cranial cavity. The brain box itself having a fixed mode is there, mobility is the less is there, because it's surrounded by the 8 bones of the skull which are forming the brain box, so that it's situated covered with the 3 meninges, dura mater, arachnoid and pia mater. Regarding the spinal cord is also same thing is there. It's also having a covering of the 3 meninges are there. This is the dura mater, arachnoid and pia mater. But one problem is there. As concerned with the problem with the spinal cord is there, because it's situated within the vertebral canal is there, but mobility is there. We are having a movement in the spine is there. Just you will see, this is called flexion and this is called extension. And sometimes we are having such type of the rotation is there. These are also is the concern with the spinal movement of the vertebrae is there. In this situation, we should protect from any type of the injury in spinal cord. This is the challenge of the nature was there. At that moment, when challenge was there, what should be done? Because the brain is suspended in the cranial cavity and covered with the
meninges is there, and we should also protect the spinal cord so that the spinal cord is within the spinal canal is there and movement should not be restricted. As concerned with the vertebrae is there, in the lectures I have told you the C7 vertebrae, T12 vertebrae and L5 vertebrae, S5 vertebrae or coccyx 4 vertebrae. These are the 4 vertebrae. This is the form, the sacrum is there, and C1 and T12, L5, it's having the mobility is there. Cervical 7 vertebrae, thoracic 12 vertebrae and lumbar 5 vertebrae. These vertebrae are there. Flexion of the trunk most probable in the lumbar region is there. So many patients which are complaining, I have lot of pain at the time of the flexion or extension or anything are more. As concerned with that, just you remember it, in the cervical region and the lumbar region, these are having the more mobility is there. As concerned with the cervical region or the cervical vertebrae are there, atlantoaxial joint is there when we are having the flexion and extension. Medial lateral rotation, medial rotation. These are the movements are there. Sometimes you have seen somebody is having the complaint at the particular movement, having the restriction is there and the patient is having the pain is there. As concerned, these are the vertebrae is there. Within the vertebrae, the vertebral canal is there, you have read, and vertebral canal is having the spinal cord is there, and these spinal cord arising 31 pair of the spinal nerve, and these spinal nerve having the compression with the movement is there. So patient is complaining, I have lot of pain at that particular movement is there. So it's challenge for the nature, movement should not be restricted and nerves should not be obstructed, nerve not should be compressed. All the pains concerned with the spinal nerve which are arising from the spinal cord, all are concerned which are having a compression is there. It may be the vertebrae is having the disc is there between the big shock absorber is there. When you will see the vertebrae, but between the vertebrae the disc is there, and this disc is having the prolapse is there, automatically what will happen, it will compress the nerve root which are arising from the spinal cord. Just so you should keep in your mind the C7, these are the vertebrae is there. When you will see the spinal nerves which are arising from the spinal cord is there, these are the spinal nerve, 31 pair of the spinal nerve. C8, just tell me, C8, T12, L5, S5 and C1. These are the spinal nerve which are arising from the nerve. When you will see, these are the 31 pair. This is the how much? 31 pair what nerves are there. These are the 33 vertebrae are there. Just, and when you will count, these are the things, 26 is the different matter, but 31 pair is 31 pair of the spinal nerves arising from the spinal cord. Now the question is arising, when the baby is going to develop, at that moment, just you remember it, at the time of the near about third month, the spinal cord situated up to the coccyx. Just imagine, when up to the embryological development is going on, it's present up to the coccyx, the spinal cord is situated. But when we will see in the adult is there, the situation is the different. Just you see, is the beginning of this is the superior border of the atlas vertebra. First of all, you see superior border of atlas vertebra, or you can say from the foramen magnum is the opening of the occipital bone, is the foramen magnum, its spinal cord is going to be stored, and in the adult at the L1 inferior border of the L1 vertebrae.
it means there is some disproportion. Up to coccyx, there is no spinal cord is there. Just one, the nature have taken the precaution. The spinal cord should not be have a trauma at the time of the movement. So what happened? When disproportional growth between the bone and the spinal cord, it happens. Just you remember it. The spinal cord is beginning or going to be start from the foramen magnum to inferior border of the lumbar first, or is the superior border of the lumbar 2 vertebrae. Superior border of the lumbar 2 vertebrae. Just we will discuss later on. Disproportional growth between the osseous tissue and the nervous tissue, it happens. What do you mean? After birth, when you will see after birth, up at the time of the birth and within 1 year, it's present up to the third lumbar vertebrae. जब बच्चे का जन्म होता है तो दूसरे के इंफीरियर बॉर्डर या तीसरे के अपर बॉर्डर तक स्पाइनल कॉर्ड रहता है. जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो ये कहां पर आ जाता है? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द L1 तक आ जाता है. जब बच्चे का निर्माण शुरू होता है तो उस निर्माण के समय पहले 3 महीने में स्पाइनल कॉर्ड कॉक्सिक्स तक. ये क्यों हुआ? जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया नंबर 3 तक था, और जैसे ही जब बच्चा जन्म लेता है तो ध्यान रखिएगा उसमें प्राइमरी कर्वेचर होता है, क्योंकि वो यूटेरस में ऐसे सिकुड़ा हुआ लेटा रहता है. लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद जब चलना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली उसमें कर्वेचर चेंज होता है. उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कर्वेचर. मैंने एक बार डिस्कस किया तो उस पर नहीं जाना चाहता. सेकेंडरी कर्वेचर होता है. जैसे ही खड़ा होकर के वॉक करना शुरू करता है वैसे क्या हो जाता है? सेकेंडरी कर्वेचर. उसका सेकेंडरी कर्वेचर होता है, क्योंकि इरेक्ट पोजीशन में रहना है, बाइपेडल है. ये हमें ऐसा मैसेज मिला हुआ. तो थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो है वो थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक रहता है, ये कॉक्सिक्स तक रहता है. ये जो चेंजेस होता है ये क्यों होता है? याद रखिएगा, डिसप्रपोर्शनल growth between osseous and nervous tissue. इसका मतलब क्या हुआ? बोन की ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है. कल मैं बता रहा था कि जो प्रोजेंसेफेलॉन है उसका जो अंदर का भाग है वो डायनसेफेलॉन है, ऊपर का भाग है टेलेंसेफेलॉन है. टेलेंसेफेलॉन की ग्रोथ रैपिड हो जाती है तो उससे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, पैलियम, सब पैलियम का निर्माण हो जाता है. कल बात की थी हमने, आज यही बात है. जो बोन की ग्रोथ है वो स्पीड में होती है, ज्यादा होती है कंपैरेटिवली नर्वस टिश्यू. इसके कारण क्या होता है? ये जो वर्टिब्री है, ये L1 है, यहां L1 वर्टिब्री जो है यहां तक ये एक्सटेंड करता है, या सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड लंबर वर्टिब्री. इट्स वेरीज. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. इट मीन्स इज हैंगिंग. ऊपर देखेंगे इस तरह से जो ब्रेन है, ये is directly attached with the central nervous. This is the part which are situated inside of the foramen magnum. It's called the brain, which is the part of the central nervous system outside from the foramen magnum, that is called spinal cord. It's also having the covering of the 3 meninges are there. These are the 3 meninges are there. It's also having the covering of the 3 meninges is there. Same thing is there. But I have told you the meninges of the spinal cord, durameta, arachnoid, pia is there, but there is some difference in the cerebral durameta and spinal durameta. Basic difference between the spinal durameta and just you remember it,
spinal dura and cerebral dura. Cerebral dura. What is the difference between the spinal dura and the spinal dura? So structure is the same, but the spinal dura is single layer and this is the double layer. Why it's having the double layer? Because cranial cavity is a large cavity, and this large cavity having the division is there. The cranial cavity has division by the double layer of the dura mater, which form the partition. बड़ा रूम है, उस बड़े रूम को पार्टीशन में डिवाइड किया. यहां पर जरूरत है पार्टीशन की? नहीं है. तो यहां पर क्या है? जो स्पाइनल है ड्यूरा वो क्या है? सिंगल लेयर. स्पाइनल ड्यूरा इज द टफ एंड इज कवरिंग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दैट. एंड ये जो है वहां क्रेनियल कैविटी है. क्रेनियल कैविटी को 4 फोल्ड बनते हैं, मैंने बताया था. 4 फोल्ड बनते हैं: फ्लैक्स सेरेब्राई, फ्लैक्स सेरेबेलाई, टेंटोरियम सेरेबेलाई और डायफ्राम सेली. These are the 4 folds of the dura mater which are dividing the cranial cavity into different compartments. Because it's the advantage of the blood supply and advantage of the protection from the injury. Backside में injury अगर है, it will not go forward and bleeding will be collected on the infratentorial. Simple. But in case of the spinal cord, just you will see, in case of the spinal cord, dura mater is the single layer and arachnoid and pia mater. These are the same 3 layers are there. Now you will see, this is the spinal cord hanging in the vertebral canal. अब क्या होता है? वर्टिब्रल कैनाल में हैंग कर रहा है. ये हैंग कर रहा है तो क्या होगा? अब हम उछलते हैं, कूदते हैं, कई सारे मूवमेंट करते हैं. ये भी फ्री है, जैसे क्रेनियल कैविटी मैंने कहा था, ये भी फ्री है इसमें भी, लेकिन सपोर्ट है. क्या है? ड्यूरा मेटा है, एरेक्नाइड है और पाया मेटा है. और पाया मेटा में क्या होता है? खास एकदम से हिलने लगेगा. जैसे आप कोई चीज में डालेंगे स्पाइनल कॉर्ड तो हिलेगा ना जब आप मूव करेंगे. नहीं, हिलता नहीं है. क्या है? लिगामेंटम डेंटिकुलेट लगे हुए. लिगामेंटम डेंटिकुलेट के जो टीथ होते हैं वो पाया मेटा से लगे हुए, पाया मेटा को पकड़े हुए. देन जी जो है पाया मेटा के साथ एक लगे हुए लिगामेंट लगा हुआ है और वो उसको क्या करता है? ऐसे अटैच करता है, उसको हिलने लगा. जस्ट इमेज. एंड द स्पेस in the vertebral canal, just we will see the space in the vertebral canal which are having the space, and this space जो है, ये जो space है वो क्या है? filled है. बहुत सारे structures हैं वहां पर, वो filled हो जाता है, भर जाता है. किस चीज से भरता है? just we are going to discuss. अब एक बात है, अगर किसी वर्टिब्रा का लेवल सपोज T4 है तो स्पाइन दोनों एक दूसरे के बीच में है. लेवल समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, वर्टिब्रा का लेवल और स्पाइनल कॉर्ड का लेवल. एक बात समझ में आ गई? वर्टिब्रल कैनाल है, उसके अंदर ये वर्टिब्रल कैनाल है, इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड. एनी डाउट? नो. वर्टिब्रा कितनी है हमारे पास? 33 वर्टिब्रा. सब में 33, उसमें सब में कैनाल है. ओके. हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है कहां तक है हमारे पास? S1. अब जो स्पाइनल नर्व निकल रही हैं, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी है? 7. लेकिन स्पाइनल नर्व कितनी है? 8. अंतर आ गया. थोरेसिक आपके पास कितनी है? 12. और ये वर्टिब्री कितनी है? 12. लंबर कितनी है? यहां पर लंबर कितने है? वहां पर कॉकिक्स कितनी है? 1. यहां पर कॉकिक्स कितनी है? 4. 33 और 31. लेकिन एक विशेष बात है, सब अपनी अपनी जगह से निकल जाती है, ऐसा नहीं हुआ. क्या हुआ? लंबर फर्स्ट में आकर के स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया.
अब देखते हैं हम, जो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया नंबर फर्स्ट में, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल 6 पर है प्रॉब्लम, सर्वाइकल वर्टिब्री 6 पर है, तो स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर कौन सा सेगमेंट है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिटवीन द रिलेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम और द एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच का रिलेशन, जस्ट इसका बीच का रिलेशन देखेंगे तो हमेशा एक फार्मूला है, 3 नीचे रहते हैं, कैसे देखें, दिस वन, ये मैं येलो कलर से वर्टिब्री बना रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, ये वर्टिब्री है, ये नीचे मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, ये नंबर वर्टिब्री है, बराबर है। ये जो है ये जो लेवल है, ये इसका L1 इंफीरियर बॉर्डर, यहां पर इंफीरियर बॉर्डर है, यही स्ट्रक्चर है ना आप भी, और इसके बीच में क्या है, इन सब के बीच में क्या है, ये बोलिए, डिस्क है, ये डिस्क है, ये वर्टिब्री है, और ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, इट्स ओके। ये यहां पर ये जो लेवल है फर्स्ट, यहां फोरामेन मैग्नम है, मैग्नम, ये ओपनिंग है ऑक्सीपिटल बोन की, क्रेनियल कैविटी की, फोरामेन मैग्नम है, फोरामेन मैग्नम से L1 के इंफीरियर बॉर्डर, L1 वर्टिब्री के इंफीरियर बॉर्डर तक स्पाइनल कॉर्ड लगा हुआ है, इट्स क्लियर, ये स्पाइनल कॉर्ड लगा हुआ है यहां पर। अब यहां पर जब L1 में खत्म हो रहा है, तो फिर यहां पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट को, जो टर्मिनल पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड का, दिस वन, इसको हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस, क्या कहते हैं, कोनस मेडुलरिस, कोनस मेडुलरिस कहते हैं इसको, इट्स ओके। टर्मिनल पॉइंट है L1 वर्टिब्री पर, इसे हम क्या कहेंगे, कोनस मेडुलरिस। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां से जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, ये जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, सब जगह के लिए स्पाइनल नर्व्स हैं, क्योंकि वर्टिब्री है तो उसके लिगामेंट हैं, मसल्स हैं, लोअर लिम्ब है, सब है, उसको हमें बनाना है। अब यहां पर एक खास बात क्या है, एक विशेष बात क्या है, कि जो सेगमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये है सर्वाइकल, अब मैं थोड़ा सा भाषा यूज कर, सर्वाइकल कॉर्ड, जब हम सर्वाइकल कॉर्ड बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, इसको हमने क्या कहा, सर्वाइकल कॉर्ड, कंफ्यूज मत होइए, ये सर्वाइकल कॉर्ड, थोरेसिक कॉर्ड, लंबर कॉर्ड, सैक्रल कॉर्ड, कॉक्सिक्स कॉर्ड, यहां पर कैसे हैं, देखें आप, यहां पर ये एक, या इसको हम कहेंगे सर्वाइकल कॉर्ड, लिखा है सर्वाइकल कॉर्ड, यहां पर आता है ये, व्हाट इज दिंग, थोरेसिक कॉर्ड, अभी मैं लेवल बताता हूं, थोरेसिक कॉर्ड, यहां से एक बार समझ लेंगे, लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे, लंबर कॉर्ड, और सैक्रम कॉर्ड, सैक्रल कॉर्ड, और नीचे का
कॉक्सिस कॉर्ड। अब देखें सर्वाइकल कॉर्ड से कितनी स्पाइनल नर्व निकल रही हैं? जस्ट 8 स्पाइनल कॉर्ड। यहां थोरैसिक से कितनी निकल रही हैं? यहाँ चलिए यहाँ थोरैसिक लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। थोरैसिक कॉर्ड यहां से कितनी निकल रही हैं? 12। लंबर से 5, यहां से सैक्रल से 5, यहां से 1। लेकिन हमारा लंबर वर्टिब्रा में ही खत्म हो रहा है पूरा। ये जो लंबर वर्टिब्रा में खत्म हो रहा है यहां पर, और उसके नीचे स्पेस मिल रहा है लंबर 2, 3, 4। और ये जो 3, 4 है लंबर, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है, उसके नीचे कॉक्सिस है। ओके, ये लंबर और 3, 4 है इज द कॉमन साइट ऑफ द लंबर पंक्चर। देखें ये एक ही डायग्राम में मैं सब बता रहा हूं। लंबर पंक्चर, पहली बात तो समझ में आ गई कि लंबर पंक्चर 3rd और 4th में क्यों करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, पहली बात स्पाइनल कॉर्ड नहीं है वहां। स्पाइनल कॉर्ड मैक्सिमम कहां तक है? लंबर 1 तक या सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द L2 तक। We are taking the choice of the lumbar puncture. We are giving the anesthesia for the operative procedures of the lower limb and the perineum. So this is the lumbar third. ये क्या लंबर, ये क्यों ऐसा हो गया? डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ, याद रहेगा, डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ बिटवीन, मैंने बताया था अभी, बोन और नर्वस टिश्यू। वाह, ये अब ये जो लेवल है अलग अलग, एक याद रखिएगा, अगर किसी ने कहा कि T9 है तो वहां पर स्पाइन थोरैसिक कॉर्ड कौन सा होगा? जस्ट T9 है, T9 वर्टिब्री है, तो थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड, थोरैसिक कॉर्ड जस्ट मैं बता देता हूं, जस्ट C1 से C7 तक, C1 C8, इसको स्पाइनल, T1 से T6 तक, T1 से T8 तक, T7 से T9, T9 से T12, T10 से T11, L1 से L5 और T12 से L1, S1 से S5 एंड कॉक्सिस। That is very important for the observation of the patients. You should keep in your mind the arrangement is such a manners are there as such. This is the very important. Just there's a major difference is there. This one in the thoracic region, लंबर कॉर्ड है। एक बात भाषा समझ में आ गई, अगर हम कहते हैं कि लंबर कॉर्ड, किसकी बात कर रहे हैं? स्पाइनल सेगमेंट की बात कर रहे हैं। लंबर वर्टिब्रा और लंबर कॉर्ड, हैव यू नो लंबर कॉर्ड, इट का मतलब क्या है? जो दीज आर द सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एनी डाउट? क्लियर हुआ कि नहीं? एक वर्टिब्रल कैनाल है उसमें, अब ये जो है वर्टिब्रल कैनाल है, यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, ये जो है अब इसमें आउटर और इनर इसके साथ अटैच है। ये और यहां पर मैं थोड़ा सा ये वर्टिब्रा बना देता हूं, उस तरफ न लेकर के इस तरफ वर्टिब्रा बना देता हूं। देखिए पहला पॉइंट,
एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस, ये एपिड्यूरल स्पेस है क्योंकि हम एपिड्यूरल स्पेस यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम है और उसको हम यूज कर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं माइनर ऑपरेशन फिस्टुला पाइल्स इसके लिए या फोर्सेप्स डिलीवरी के लिए एब्जियोटॉमी करते हैं, जब वेजाइना को कट करते हैं बच्चे का हेड बड़ा होता है तो बाहर निकालने के लिए हम कई बार यूज करते हैं तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो एपिड्यूरल स्पेस है, एपिड्यूरल स्पेस किसके किसके बीच में है, ये बोन और ड्यूरामेटा, दिस वन बिटवीन एंडोऑस्टियम एंड ड्यूरामेटा, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिड्यूरल स्पेस। इट्स ओके, ये एपिड्यूरल स्पेस है। सेम ड्यूरा और एरेक्नॉइड इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, सबड्यूरल स्पेस। दूसरा स्पेस क्या है, सबड्यूरल स्पेस है। एपिड्यूरल जो स्पेस होता है इसमें लूज कनेक्टिव एरियोलर टिश्यूज रहते हैं, वेसल्स रहती हैं, फैट रहता है, वो पूरा एक कुशन टाइप का काम करता है। इट्स वर्क एज ए शॉक एब्जॉर्बर, कुशन टाइप का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर है। उसके नीचे कैसा है ना, हमें कोई भी चीज बॉटल के अंदर रखनी है तो सुरक्षित रखनी होती है, कवर कर देते हैं। Nature has given us such type of the advantage which are hanging on the vertebral canal and is supported by the some tissues are there and these tissues giving the support and work as a cushion. It should not be injured at the time of the movement is there. So areolar tissues हैं, fat है, वहां पर वो कुशन का काम करता है। ये जो कुशन का काम करता है, दूसरा जो है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस है। यहाँ पर पतली फिल्म होती है, जो एरेक्नॉइड से एक पतली फिल्म होती है, सब ड्यूरल स्पेस होता है। दोनों मेम्ब्रेन अलग अलग रहती है। तीसरी मेम्ब्रेन हम आपके पास है, मेनिंजेस है। तीसरी जो है वो कौन सी है, एरेक्नॉइड, जो एरेक्नॉइड है। और चौथी कौन सी है, पायामेटा। ये जो एरेक्नॉइड और पायामेटा है, एरेक्नॉइड एंड पाया, ये दोनों को मिलकर के लेप्टो कहते हैं। लेप्टोमेनिंजेस इज द इंपॉर्टेंट वेरी क्लिनिकली, लेप्टोमेनिंजेस इज देयर। जब भी इन्फेक्शन होता है, मेनिंजाइटिस होती है, बुखार ज्यादा तेज हो जाता है, मेनिंजेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम डॉक्टर लिखते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस। इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द एरेक्नॉइड एंड पायामेटा, द लेप्टोमेनिंजाइटिस। उसमें अलग सिम्टम मिलते हैं। पेशेंट को मेनिंजाइटिस में नेक रिजिडिटी होती है, उसका CSF का प्रेशर चेंज हो जाता है, CSF का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और हम CSF का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो आगे की बात है, बट इसको हम लेप्टोमेनिंजाइटिस कहते हैं। ये इसके बीच में फ्लूइड होता है, किसके बीच में, एरेक्नॉइड और दिस इज, ये जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, CSF। अब देखें, आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड CSF इज सर्कुलेटिंग, एंड व्हेन यू विल सी द TS of the spinal cord, this is also having the central canal is there, like that. This is called central canal. This central canal is also having the CSF. Ventricular system of the brain, right and left lateral ventricle, third ventricle, cerebral aqueduct, and cerebral aqueduct के बाद fourth ventricle, and fourth ventricle is continues to the central canal. Try to understand me. It's continued as a central canal. Outside of the subarachnoid space, which are also having a communication with the cranial cavity, cranial meninges are there, which are also having the same thing. CSF outside inside is flowing in CNS, which replace lymphatic system of the CNS.
ओके। जो सीएनएस लिम्फेटिक सिस्टम को रिप्लेस करता है या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वेटलेस फील करता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका अपना कुछ वजन ज्यादा ना फील हो, इसके लिए अंदर भी वाटर है, सीएसएफ है, और बाहर भी से। यही बात क्रेनियल कैविटी में भी है। ये हैंग कर रहा है, मैंने अभी बताया, वर्टिब्रल कैनाल में। मेन बात कहाँ है कि जो ये सेगमेंट्स हैं, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं, सभी मैंने अभी बताया आपको कि सर्वाइकल सेगमेंट है, थोरेसिक सेगमेंट है, और लंबर सेगमेंट है। ये सेगमेंट है, यहाँ पर ये कॉनस मेडुलरिस होता है। अब एक खास बात और होती है। क्या खास बात होती है कॉनस मेडुलरिस के बाद? ये स्पाइनल नर्व निकलेंगी तो सभी 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व निकलती हैं। ये 31 पेयर जो स्पाइनल नर्व निकलती हैं, सभी को नीचे जाना है। तो क्या होता है इनमें, एक यहां से जो स्पाइनल नर्व निकलती, इस यहां से जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं इस तरह से, ऐसे आपने पढ़ा होगा, ऐसे इस तरह से स्पाइनल नर्व, ये इस तरह से, ये जो स्पाइनल नर्व्स नीचे स्पाइनल नर्व ऐसे निकलती हैं, इस जो एक बंच बनाती हैं, नर्व्स का बंच बनता है नीचे। क्योंकि आप समझिए बात को, वो सेगमेंट से निकलनी तो है नर्व, लेकिन वहां पर सेगमेंट में वहां नहीं जा सकती क्योंकि L1 के लेवल पे। तो फिर यहां से निकलेंगे और आपको यहां तक पहुंचाना है, तो क्या करेंगे आप, मुझे बताइए। ये क्या करेंगे, यहां से निकलेंगे और ऐसे लंबे जाएंगे थोड़ा सा, अब फिर नीचे जाएंगे। These are the nerves which are coming and making the convexity. When convexity is making, what will happen? Look like a horse of tail of horse. That is called cauda equina. cauda equina. Equina घोड़े को कहते हैं, cauda पूंछ को कहते हैं, cauda equina is. Cauda equina, nothing else, is the tail of horse. पूंछ भी कई प्रकार की होती है। इन्होंने गोट टेल नहीं कहा है, बकरी की पूंछ नहीं कहा है। क्यों? बकरी की पूंछ कैसी होती है? छोटी सी होती है। घोड़े की पूंछ कैसी होती है? यू जस्ट सी, घोड़े के पूंछ कैसे होते हैं, उसके हेयर्स कैसे होते हैं, ये इस तरह से। इस क्यों दूर जाना है? दूर जाना है तो कॉन्वेक्सिटी मेंटेन करना है। कॉन्वेक्सिटी मेंटेन करेंगे तभी बिना उलझे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर सीधे सीधे जाते तो क्या होते, उलझ जाते थे। और नर्व्स नहीं है उसको नेटवर्क बनाना। क्यों? बिकॉज जस्ट यू विल रिमेंबर इट, द स्पाइनल कॉर्ड हैविंग द टू इनलॉर्जमेंट इज देयर, बट वन इज द सर्वाइकल इनलॉर्जमेंट, सेकंड इज द लंबर इनलॉर्जमेंट, व्हिच आर फॉर्मिंग द प्लेक्सिस। यही तो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से प्लेक्सिस बन रहे हैं, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? कॉडा इक्वाइना। अब थोड़ा सा आगे और जाएंगे। कॉडा इक्वाइना हो गया, एक बात क्लियर हो गई। अब कॉडा इक्वाइना जहां पर खत्म होता है, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है, कहां पर? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द L1 पर खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या कुछ नहीं होता? नहीं। वर्टिब्रल कैनाल क्या पूरी की पूरी ब्लैंक होती है? नहीं, उसमें भी कंटेंट्स होते हैं। क्या कंटेंट्स होते हैं? जस्ट यू रिमेंबर इट। यहां पर जो आए, यहां पर पाया मेटा और कुछ नर्व फाइबर्स आते हैं और कॉकेक्स तक रहते हैं। वाह! जो ये इसको हम जो आते हैं नर्व फाइबर, उसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनली। फाइलम टर्मिनली। यहां पर तो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया, उसके नीचे जो फाइबर आ रहे हैं, जो पाया मेटा आ रही है, वहां उसके नीचे पाया मेटा आ रही है, खाली नहीं छोड़ रहे हैं। वो जो पाया मेटा आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, लेकिन क्या है? कुछ नर्व फाइबर्स, कुछ पाया मेटा, ड्यूरामेटा जो है कवर्ड किए हुए पाया मेटा अंदर जा रही, जो इंडिकेट करती है कि स्पाइनल कॉर्ड पहले कहां तक था? स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक था। फाइलम टर्मिनली ही शो कर रहा है क्या है? स्पाइनल कॉर्ड कहां तक था? नीचे था। लेकिन ग्रोथ का डिस्प्रोपोर्शनल ग्रोथ होने के कारण क्या हुआ? ये डिस्प्रोपोर्शनल ग्रोथ होने के कारण क्या हुआ? ये ऊपर हैंग कर गया, लटक गया। और उसके नीचे क्या है? उसके नीचे क्या है? फाइलम टर्मिनली। इसको नाम क्या दिया है? फाइलम टर्मिनली।
फाइलम टर्मिनली जो है, फाइलम टर्मिनली है, ये दो प्रकार की होती है। इसमें भी खास बात, ये दो प्रकार की। कैसी दो प्रकार? पहला जो L2 से लेकर के H2 तक है, देखें आप, इसको हम कहते हैं इंटरनम, फाइलम टर्मिनली इंटरनम। और H2 से C1 तक जो है उसको कहते हैं एक्सटर्नम। एक्सटर्नम फाइलम टर्मिनली जो है वो लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, और पूरे स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है, जिनका आर्किटेक्चर, जिनकी लंबाई के हिसाब से लगभग नियर अबाउट 45 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर क्या है इसका? फाइनल टर्मिनली। 20 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर ये जो है फाइलम टर्मिनली इंटरनम 15 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर एक्सटर्नम है। एक्सटर्नम थोड़ा सा हम इसको और, these are the some important points regarding the spinal cord, you remember it। वेट इसका 35 ग्राम होता है, जस्ट इमेजिन 35 ग्राम ओनली। जहां पर ब्रेन का वजन 1400 ग्राम है, 1300 ग्राम है, इसका वजन कितना है? 35 ग्राम है। स्पाइनल कॉर्ड, बट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जस्ट इमेजिन इट, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 35 ग्राम वजन है, इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर है लेंथ। फीमेल में थोड़ा कम रहती है। यहां पर ये इसके जो पॉइंट्स हम देखेंगे, पहला कहां से, अभी मैंने बताया कि आपको फोरामेन मैग्नम से शुरू होता है और लंबर फर्स्ट के इंफीरियर बॉर्डर तक रहता है, और जो पॉइंट है उसको हमने आपको लिखना है कोनस मेडुलरिस। ये पॉइंट आउट करना है आपको, कोनस मेडुलरिस, फाइलम टर्मिनली एंड कार्डा इक्वाइना, एंड thoracic segment and spinal segment. These are the things which are concerned with the external features of the spinal cord. These are the conclusive of the external feature of the spinal cord. Have you understand? Yes, sir. These are the points. ये यहां से लेकर के यहां तक शुरू है, कार्डा इक्वाइना बना रहा है, कोनस मेडुलरिस है, फाइलम टर्मिनली है। एंड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिमेन। वन इज द, जहां जहां पर ये सर्वाइकल रीजन में और लंबर रीजन में, सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन में, यहां दो रीजन है, वो दो रीजन में सर्वाइकल एनलार्जमेंट, राइट डाउन, सर्वाइकल उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ब्रॉड होता है, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल एनलार्जमेंट। एंड सेकेंड इज कॉल्ड लंबर एनलार्जमेंट। लंबर एनलार्जमेंट, यहां पर ज्यादा चौड़ाई है, इसकी 38 मिलीमीटर है और इसकी 35 मिलीमीटर है। यहां पर ज्यादा चौड़ाई है, इसकी 38 मिलीमीटर है और इसकी 35 मिलीमीटर है। ये दोनों की चौड़ाई वो पूरे स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? सर्वाइकल और
इसकी क्यों ज्यादा है? एनीबडी टेल मी, क्यों ज्यादा है? अरे सिंपल है, सर्वाइकल में क्या ब्रेकियल प्लेक्सिस बन रहा है, सब काम हाथ से करने लगे, सब पूरा लोड स्पाइनल कॉर्ड और पैर का काम. हैव यू अंडरस्टैंड? ड्यू टू व्हाई इट्स हैविंग, बिकॉज देयर इज द ब्रेकियल प्लेक्सिस and lumbar plexus. These are the two important plexus is formed in the particular segment of the spinal cord, so that यहां पर क्या हुआ, उसका enlargement होगा. Next time, next lecture, I will continue same thing. Thank you very much.